Hey guys, and welcome back to the channel. My name is Nishant Srivastava and I'm your verbal ability guide for IP Math, CUET and other UG entrance examination. For any details inquiry, you can call us at 7524833567. 9:30 के बाद 9:30 के बाद प्लीज डोंट कॉल और do follow our telegram channel. The link is in the description, and if you are not able to find, you can just search I am Blasters on telegram. You will get to it. So today हम अपनी जो सीरीज लाए थे मॉक की, दैट वी 4-5 दिन पहले, नहीं काफी दिन हो गए, आई थिंक 10 days हो गए. सो आज मॉक सेशन 6 लेके मैं आया हूँ आपके सामने. आई एम हियर विद मॉक सेशन 6. सो लेट्स हॉप इनटू द सेशन. एंड आज मुझे आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज कमेंट करिएगा कि ऑडियो क्वालिटी क्या पहले से बेटर है या वैसे ही है जैसे पहले. बिकॉज आई हैव चेंज द माइक. 10-15 दिन बाद तो ऑब्वियसली सेटअप सारा लग जाएगा अपना, एंड द ऑडियो क्वालिटी विल बी ऑसम दैट. बट फिलहाल के लिए अगर ऑडियो क्वालिटी बेटर आ रही तो आई यूज दिस माइक दैट आई एम यूजिंग टुडे. सो प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स ओपन द सेशन. So, first question, as always, RC. I'll go to the RC. अगर आप if you have the capability to read on yourself, and you should have the capability because exams are on the verge. So आप खुद से पढ़िए एक बार, then match with my explanations and things, and then we'll move forward. Okay? So I am reading here. You can pause the video and do the things I have told you. Okay, कल मैंने एक फ्लो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था. You can use that also. That's a very good concept, very good tool to use in the examination. Okay, let's start. The issues of implementing the one rank one pension OROP इसे कहते हैं. प्रिंसिपल फॉर द वेटरन्स. वेटरन्स मतलब जो पुराने लोग होते हैं. ऑफ द डिफेंस सर्विसेज कंटिन्यू टू बी वेटरन्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज. डिफेंस सर्विसेज के जो पुराने लोग हैं वेटरन्स कहलाते हैं. Continues to be in the news for all the wrong reasons. Okay, with the final announcement nowhere in sight. अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है फाइनल अनाउंसमेंट. With the Narendra Modi government in its second year, its major poll promise of OROP remains unfulfilled. नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के दूसरे साल में भी, सेकेंड ईयर में भी, दो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था OROP के लिए वो अभी भी अनफुलफिल्ड है. While Prime Minister Narendra Modi and his ministers have reiterated the government's commitment to the scheme. मिनिस्टर्स ने क्या है चेंजेस कर दिए हैं, रीआइटरेट कर दिया है. जो भी वो एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उनके पास अपना एक प्रोफार्मा होता है कि वी विल गिव दिस थिंग्स, पूरा वो मेंशन होता है, पॉइंट वाइज मेंशनिंग होती है उस चीज की. सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि दे हैव रीआइटरेटेड द they have reiterated the government commitment to the scheme that by itself does little to contain the growing unhappiness of the community. Obviously unhappiness तो होगी community में, of ex-servicemen that has been waiting for years for a fair deal. Okay, that's easy to understand, simple था बिल्कुल. Their demand goes back over 3 decades. 30 years से उसकी उनकी डिमांड्स आ रही है इस चीज के लिए. Successive governments have intermittently मतलब रुक रुक के raised the hopes on it according to political convenience. Political convenience के हिसाब से जो जो गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट आती गई, उन्होंने उस पर क्या कहते हैं बड़ी बड़ी बातें की, बट अभी कुछ काम नहीं हो पाया है. बट द फीलिंग हैज grown that a soldier who puts the nation ahead of its own life in the line of duty faces political apathy after retirement. Political apathy मतलब political खराबियां, we can say that. Apathy मतलब the disturbances after the retirement. The previous UPA government, UPA मतलब कांग्रेस government, cleared the deal in principle with allocation of 500 crore, but there was no progress beyond that. कुछ डील वगैरह की थी उन लोगों ने, लेकिन अभी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है. In the in the run-up to Lok Sabha election last year, the Congress once again brought up the issue to the limelight. OROP was one of the top election promises of the BJP that helped garner, अभी मैं garner की मीनिंग आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आगे, garner the support of the large community of ex-servicemen and their families. And the huge mandate of the BJP received has convinced them that at
long last the scheme would see the light of the day. मतलब बीजेपी ने कन्विंस किया उनको कि अब आखिरी बार है, ये आखिरी मौका है, वी विल ब्रिंग द स्कीम टू द लाइट ऑफ द डे, सामने लाया जाएगा. ओके, सो गार्डनर की मीनिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट गार्डनर. सो इट इज to collect something important, to collect something important. Okay, moving to the further paragraph. While the government has given in principle clearance to the proposal clearance मिल चुका है, the process of completing the administrative procedures across different departments seem to be unending one. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बचे हुए हैं, गवर्नमेंट ने उसको क्लियरेंस प्रपोजल को दे दिया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं ऑफिस के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि अनएंडिंग वन है, मतलब कभी खत्म ना होने वाले हैं. Defense Minister Manohar Parrikar has on several occasions said his ministry had finished its part of the work and that the file was with the Finance Ministry. डिफेंस मिनिस्टर मनोहर जी ने कहा है कि उन्होंने दैट उनकी साइड से, डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से काम खत्म हो गया, एंड फाइल हैज बीन पास्ड ऑन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री. नाउ he has promised 80-90% of the satisfaction for the service personnel. OROP essentially seeks the parity for all service personnel retiring on the same rank. Parity मतलब I think वो होती है, I will confirm, equality for all personnel retiring on the same rank and tenure in this, irrespective of when they retire, and is expected to benefit 2.5 million ex-servicemen and women immediately. That said, the exercise of calculating the dues is complicated procedure in itself. Obviously, dues calculate करना, it's a long procedure because 33 decades से वो चल रहा है matter. In budget 2015, an initial collection of 1,000 crores was made, but it has been estimated that the cost could come to about 8,300 crores. There is a view that it would still go up by substantial measure depending on the method and the criteria adopted. It has to be seen how the government makes the financial provision for such recurring outgo. Recurring outgo मतलब जो अमाउंट ये होना था वो ये हो गया, तो आउटगो बढ़ गया ना. रिकरिंग मतलब बार बार होता हुआ आउटगो. But the early implementation of the scheme has now become an imperative. Mere rhetoric and assurances will, imperative मतलब जो काम नहीं आ रही फिलहाल. Rhetoric की मैंने आपको मीनिंग बता चुका हूं. I'll again tell the meaning further. Mere rhetoric and assurances will not be suffice. मतलब suffice मतलब होता है satisfactory नहीं रहेंगे. It is a high time for the government came out to the clear roadmap and firm date of its implementation and then adhere to it. गवर्नमेंट को एक क्लियर रोड मैप के साथ आना चाहिए, एक फॉर्म डेट लानी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उस पर पालन भी करना चाहिए. adhere. This country owes its defense forces as much. Obviously, it's understood. Passage तो easy था. I must say passage मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का पैसेज था. कुछ वर्ड्स थे इसमें ऐसे जो नहीं समझ में आने वाले थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वर गुड. सो अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स. खुद से करिए आप लोग एंड देन आई विल टेल यू द आंसर आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन. So the question says choose an appropriate title for the passage. पैसेज का टाइटल बताना है आपको. पैसेज आपको पता है, A Forgotten Tale, ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, A Promise to Redeem the Gamble. गैम्बल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गैम्बल. The Long War of Warriors. अगर एक अप्रोप्रिएट टाइटल की बात की जाए तो गवर्नमेंट में जो सालों साल प्रॉमिस किए थे, वो ही कहना चाह रहा है, जो भी प्रोमिसेस किए थे वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं. तो जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल होगा
ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज अ प्रॉमिस टू रिडीम, द गवर्नमेंट हैज द प्रॉमिस दैट इज टू बी रिडीम्ड। फॉरगॉटन टेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली बात भूली नहीं गई है, वो बार बार उठ के आ रही है, गवर्नमेंट उसको बार बार ये बात कह रही है कि इट विल बी डन, लेकिन वो कर नहीं रही है। गैम्बल हो नहीं सकता, लॉन्ग वॉर ऑफ वॉरियर्स कह सकते हैं लंबी लड़ाई है, लेकिन इट विल बी अ रीजनेबल वन। So option number B is the right answer. You may confuse between B and D, but it is not the long war of the warriors. एक्स सर्विसमैन के बारे में बात कर रहा है। सो लॉन्ग वॉर नहीं है ये, इट्स लाइक प्रॉमिस है जो गवर्नमेंट ने किया था कईयों बार, 10 बार, मतलब यूपी गवर्नमेंट आई, देन इट्स सेइंग दैट बीजेपी गवर्नमेंट आई, एंड द प्रॉमिस इट्स द प्रॉमिस हैज बीन नॉट बीन डन येट। सो a promise to redeem is the right answer. Option number B. Moving to question number 2 of the day, which of the following is true according to the passage? Two statement निकालने हैं इसमें से. These are the statement. I am giving you 15 seconds of the time. स्टेटमेंट पढ़ोगे एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी वन, नहीं इतना भी इजी नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप देखिए इसको एक बार। ओके, लेट मी रीड। ए, the previous UP government cleared a deal with in principle with allocation of rupees 500 crore, but there was no progress beyond that. I think it's correct. यूपी गवर्नमेंट की बात की थी उन्होंने। The mandate that BJP received has convinced the ex-servicemen that at long last the scheme would see the light of the day. The last statement ये देखिए, let me come to the would see the light of the day, ये long last scheme with the see the light of the day वाली statement थी, ये बिल्कुल correct हो गई है। Okay, last statement, OROP essentially seeks parity for all service personnel retiring on the same rank and tenure in fact, ये भी बात हुई थी, in respective of their when they retire time, rank और उसके बेसिस पे होगा, seeks parity equality for all service personnel retiring on the same rank. If a person is retiring on the same rank, it will be rewarded with the same thing in respective of when they retire. Timing की consideration नहीं ली गई है. So this is also right. So option number A, B, C तीनों right हैं. D is the right option. Moving to question number 3. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मोर देन इनफ है, बस यू नीड टू गो थ्रू एंड यू विल गेट। एक्चुअली आई एम अलॉटिंग यू अ लेसर टाइम सो दैट एग्जामिनेशन में आपके स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाए, सो यू कैन टैकल द क्वेश्चंस वेरी वेल। दैट्स व्हाई आई एम अलॉटिंग यू अराउंड 15 सेकंड्स के क्वेश्चन में 10 सेकंड, 10 सेकंड के क्वेश्चन में 5 सेकंड्स, एंड 20 सेकंड्स, फिर 25 सेकंड्स के क्वेश्चन में 15 सेकंड्स अलॉट कर रहा हूँ। इसी तरीके से 5 सेकंड्स कट करके आपका जो वो टाइम बचेगा, you will be able to revise the paper also. So what the question says, which of the following is the reason that the budgetary allocations are crossing the decided limit? Statement में आपने ध्यान दिया होगा, once it was saying 1000 crores and the next line it was saying 8300 crores. So वो यही कह रहा है कि budgetary allocations जो है are crossing the decided limit क्रॉस कर रहे हैं। क्या रीजंस है इसके पीछे, रीजंस क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, द एलोकेशंस आर गोइंग अप बाय सब्सटेंशियल मेजर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड एंड द क्राइटेरिया अडॉप्टेड। ये लाइन ओके दैट्स सेट ओके, एलोकेशंस हाँ गो, it would go still up by substantial measure depending upon the method and the criteria adopted. Mark the line. Now let's come back to the question. It is the right answer. आंसर मार्क हो गया। लेट्स सी मोर ऑप्शन ऑल्सो, कि क्या फंस सकता था क्वेश्चन, क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन मैच कर जाएं। द गवर्नमेंट हैज वेस्टेड मेनी रिसोर्सेज इन जस्ट इम्प्लीमेंटेशन दैट इज श्योर टू इंक्रीज लेटर। ऐसा नहीं है, ये कहीं बात नहीं की गई है। द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग, ये भी कोई बात नहीं है। दे आर क्लेमिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ, क्लेमिंग कुछ नहीं, ऐसे स्टेट पैसेज से रिलेटेड आपको समझना है।
इफ ही इज सेइंग, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है कि आपको अपना दिमाग लगाना है, इंटरप्रेट करना है, तो आप इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन फिर भी रेलेवेंस जो है वो पैसेज का ही रहेगा। पैसेज से आपको बाहर नहीं जाना है। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जाए, आ जाए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, यू माइट हैव द नॉलेज अबाउट द टॉपिक, but you are not going to use your brain, you are going to just follow the passage and its lines. That's it. So question number 4, which of the following is not true according to the passage? We have to give the false statement, मतलब false statement select करना है, इनमें से बताइएगा। Okay, again 15 seconds of time, I'll help you. You just try to attempt the question. Okay, so not true, false statement हम लोगों को निकालना है इसमें से बाहर. We need to check out the false statements. Okay, option number A. With the Narendra Modi government in its second year, its all major poll promise OROP remains unfulfilled. Obviously ये बात हो चुकी थी, पैसेज में ये है. With such a pace that government is running, ex-servicemen are totally satisfied. No, ये satisfaction की तो बात ही नहीं की उसने कहीं पे कि सर्विस सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा कि डिससेटिस्फाइड है. बी गलत हो गया. अब यू कैन सी दैट यहाँ पेयर्स हैं. यू डोंट नीड टू चेक ऑप्शन नंबर सी, इट्स ऑलरेडी करेक्ट. भाई अगर बी गलत है तो ए सही है, ऑब्वियसली सी भी सही हो जाएगा. पढ़ लेते हैं. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव इंटरमिटेंटली रेज देयर होप अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कन्वीनियंस. कन्वीनियंस के पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार उन्होंने रिस्पेक्ट में होप्स रेज की है, लेकिन कभी काम नहीं किया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही हो गया. अब सी एंड ए आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी, नॉट फ्रॉम दिस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. वीडियो स्किप करके देखोगे तो ए बी सी में कंफ्यूजन हो जाएगा, स्किप ना करना. एटलीस्ट जब आंसर करा रहा हो तब तो बिल्कुल मत करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सब्सटैंशियल? नॉट द सिनोनिम, यहां एंटोनिम भी हो सकता है. एक मिनट, वन सेकेंड, वेट. देखो, दो नॉट द सिनोनिम के टू मीनिंग्स हो सकते हैं. पहला जनरल और दूसरा एंटोनिम. तो जरूरी नहीं है कि जो नॉट सिनोनिम हो वो एंटोनिम ही हो सकता है एंटोनिम हो. लेट मी चेक. इसके लिए आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. सब्सटेंशियल होता क्या है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, मेजरली लोगों को पता ही होगा. सब्सटेंशियल मतलब होता है कि ज्यादा वजनदार, या फिर कह सकते हैं कि मेजर इज सब्सटेंशियल. कहते नहीं है, वी हैव द सब्सटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट यू, मतलब मेजर एविडेंस है मेरे पास. तो सब्सटेंशियल का मीनिंग मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इट्स मेजर. अक्लेम तो नहीं हो सकता. अक्लेम मतलब किसी को क्लेम कर देना. जब आई हैव अक्लेम्ड द थ्रोन टू जूनियर राजा ऑफ राजस्थान, कहते नहीं ऐसे, तो अक्लेम तो नहीं होगा यहाँ पे. एलिमेंट्री, ऑब्वियसली एलिमेंट्री मतलब बेसिक होता है, इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं होगी. एंटोनिम या फिर जनरल सेंटेंस. वर्थलेस, कोई मीनिंग नहीं सब्सटेंशियल से, एक ही बनता है, वो है एंटोनिम इसका, एबियंस. अब एबियंस की मीनिंग क्या होती है? Abeyance is a state of temporary suspension. State of temporary suspension. So जहां substantial मेजर था वहां state of temporary suspension इसका एंटोनिम या फिर नॉट द सिनोनिम वर्ड होता है. इन तीनों की क्या है, इससे कोई रिलेवेंस ही नहीं. एक मिनट, आई थिंक, लेट मी चेक इट वंस अगेन. नो, हाँ, सब्सटेंशियल इज मेजर. सॉरी, वो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गया था. नॉट दी अगर कोई चीज सब्सटेंशियल है, मेजर है, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? इसमें से बताइए. एक्लेम्ड, एलिमेंट्री, एबियंस मैंने आपको बताया था टेम्परेरी स्टेट ऑफ सस्पेंशन.
तो नहीं होगा, वर्थलेस हो सकता है कि कोई चीज मेजर है और कोई चीज वर्थलेस है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, वो ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गई थी, सॉरी, बट अब सही है, डी वर्थलेस। एक्चुअली पीपीटी दूसरे लोग बनाते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम अगेन ऑफ द वर्ड पैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, पैरिटी होता क्या है? पैरिटी मतलब होता है इक्वलिटी, मैंने अभी आपको बताया भी था, इक्वलिटी होता है इसकी मीनिंग, इसका उल्टा बताना है, ठीक। अनइनफॉर्मिटी, अनइनफॉर्मिटी, इंफॉर्मेशन की अपोजिट अनइनफॉर्मिटी आती है, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को अनइन्फॉर्म करना, नहीं होगा इसका। एल ए मीनिंग, एल ए टू मेक समथिंग वीक, सॉरी, टू मेक समथिंग वीक, किसी को वीक बना देना या किसी चीज को वीक बनाना, समथिंग और समवन दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, एल ए। तो पैरिटी के अपोजिट नहीं, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, वीक और स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं हो रही है, ऑब्वियसली ऑप्शन है। डैमेज, अच्छा इक्वालिटी और डैमेज का कोई संबंध नहीं है, तो इसमें ऑप्शन एक ही मैच करता है, डी, नन ऑफ दीज। इक्वालिटी का होगा, नॉन इक्वालिटी हो जाती, अनयूनिफॉर्मिटी हो जाती, यूनिफॉर्मिटी अनयूनिफॉर्मिटी हो जाती, यूनिफॉर्मिटी की जगह अगर ये अनइनफॉर्मिटी की जगह अनयूनिफॉर्मिटी हो जाती या अनयूनिफॉर्म हो जाता, तो फिर एक बात अलग है, ठीक है। पैरिटी एल ए मार्क्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज विद अ फाइनल अनाउंसमेंट नोवेयर इन साइट। इससे मीनिंग क्या है? देखिए उन्होंने बताया था, ये स्टेटमेंट यहाँ यूज हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया था कि फाइनल अनाउंसमेंट हो गया है, दैट्स नोवेयर इन साइट, ठीक, वहां से ये स्टेटमेंट लिया गया है। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस पहले। What does the author mean by the phrase the sight of the ex-servicemen are weak? No, obviously not. ये ऑप्शन नहीं है, इतनी लाइन पढ़ के समझ में आ गया। The decision seems to be taken soon on the occasional international yoga day. योगा डे की कोई बातचीत नहीं हुई है, no. The final announcement is not visible by the naked eyes. No, eyes वाइज की बात नहीं करी है यहाँ पे। नोवेयर इन साइट का मतलब ये है कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, अभी उस जो काम उनसे कहा गया था करने के लिए वो अभी तक नहीं दिख रहा है। द फाइनल अनाउंसमेंट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Moving to question number 8 of the day, which of the following is a synonym of the word surface? Surface मीनिंग क्या था surface का? अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वीडियो पॉज करके। सर्विस का मतलब होता है टू सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई, और टू क्या था, एक सेकंड, हाँ, टू बी इनफ फॉर समथिंग और समबडी, टू सेटिस्फाई समबडी, किसी चीज इनफ, ज्यादा हो जाना नहीं, ऑप्टिमम, टू सेटिस्फाई। अब लेट्स गो टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, एंटी डिल्यूवियन। अब ये इतना बड़ा वर्ड जो है एंटी डिल्यूवियन, इसका मीनिंग क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कैप के रिस्पेक्ट में, बिकॉज कॉमन है। अब मैं इसका जब आपको मीनिंग बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज वेरी वेरी ओल्ड फैशन्ड, समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड फैशन्ड इज एंटी डिल्यूवियन। सेक्रीफाइस की मीनिंग सबको पता है, ग्रेसफुल की मीनिंग भी पता है, सेटिस्फाई की मीनिंग पता है, सिनोनिम इसका सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक के, यही तो मीनिंग होता है ना, रुक रुक के, डिस्टरप्टली काम करना, धीरे धीरे, रुक रुक के। सिनोनिम बताना है इसका, स्पोरेडिकली मीनिंग पहले जानेंगे। इट्स नॉट रेगुलरली और कांस्टेंट, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर और नॉट कांस्टेंट। अपोजिट अपोजिट ही होता है। बैड का मतलब क्या होता है? बैड इज अ पोएट, अ पोएट।
जो घूम घूम के गाने गाते हैं वो पोएट, नॉट अ पोएट जो आप लोग देखते हैं मूवीज में। द पोएट जो पुराने जमाने में ओल्ड टाइम्स में सड़कों पर घूमते रहते थे, गाते रहते थे, दैट वर्ल्ड। इमिडिएटली, तुरंत तुरंत इमिडिएटली हो जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है, नॉट रेगुलर और कांस्टेंट, स्पोरेडिकली, इंटरमीडिएट, रुक रुक के, नॉट रेगुलर। ऑप्शन नंबर ए मैचेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगर आपने ये मार्क किया तो अपने को प्लस दीजिए। मार्किंग कर रहे हैं ना आप लोग, मार्किंग जरूर करते रहिएगा, बिकॉज इफ यू आर करेक्ट +4, रॉन्ग -1, मार्क्स देते रहिएगा। एट द एंड सी व्हाट यू आर इन पोजीशन। जरूर देखिएगा कि आप किस पोजीशन पे बैठे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मीनिंग गार्नर। सिनोनिम बताना है, मीनिंग पता होनी चाहिए पहले इसके लिए। गार्नर की मीनिंग क्या होती है? टू कलेक्ट, वी कैन से समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, ठीक। गार्नर, अरेस्ट, अरेस्ट ही होता है बेली। बेली का मीनिंग क्या होगा? बेली भी नहीं, इट्स बिलाय। इट्स टू गिव एन आइडिया, आइडिया दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स और नॉट ट्रू, ठीक है। एक्यूमुलेट, टू गैदर समथिंग। कॉनकॉट मीनिंग, कॉनकॉट मीनिंग टू मेक समथिंग। देखिए ये कॉनकॉट वर्ड जो है ना, अगर आप इसका रूट वर्ड जानेंगे, वो कैब में थिंग होती है रूट वर्ड, तो आप इसको पकड़ सकते हैं कॉन्कॉशंस वगैरह से। कॉन्कॉशन नहीं, कॉन्कॉशन, कॉन्कॉशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिक्स करके एक लिक्विडी सिरप टाइप का, या सिरप नहीं कह सकते, लिक्विड थिंग बनाना, इट्स कॉल्ड कॉन्कॉशंस। पानी में कुछ मिला दिया, पानी में एग्जांपल आपने कपूर मिला दिया, ठीक है, कैम्फर मिला दिया, इट्स अ कॉन्कॉशन, ठीक है। या काढ़ा बनाते हैं आप लोग घर में, कोविड में बहुत पिया लोगों ने, है ना, तो काढ़ा जो है वो कॉन्कॉशन कहलाता है। सो कॉन्कॉक्ट भी उसी तरीके से है, मीनिंग इसका सी वही है, टू मिक्स डिफरेंट थिंग्स, और उससे कुछ बना देना। टू मिक्स डिफरेंट थिंग्स टू फॉर्म, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया, थिंग्स टू फॉर्म समथिंग न्यू या समथिंग डिफरेंट। अब बात करते हैं सिनोनिम की। सिनोनिम ऑफ द वर्ड गार्नर, गार्नर इज टू कलेक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, C3 कुछ भी कह लीजिए। क्यों? एक्यूमुलेट का मतलब ये तो होता है टू कलेक्ट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, यहां से क्वेश्चन थोड़े से अच्छी कैटेगरी के आने लगेंगे अब, मतलब रोहतक एंड अबव चले जाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे अराउंड 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, आप करिए। जस्ट ये कम से कम ये जो पैरा जितने रेड में, इसको पढ़िए। यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, by launching a trade war against China, statement, by launching a trade war against China, the United States government that had had pressured many a country to liberalize trade and global seem to have turned against its, ये its है, own agenda। यहाँ लिखे दे रहा हूँ its, ठीक है। In a series of aggressive moves, the US, the one-time votary of free trade, has put in place dash. These moves, initiated by Donald Trump administration, were on occasion targeted at multiple countries
They involved rewriting the North America Free Trade Agreement with Canada and Mexico, but the focus of the trade and technology war has been China. Focus China पे था, and it was between North America and North America Free Trade Agreement and Canada and Mexico के बीच में जो agreement था उसके बारे में ये पूरा statement है और ये ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना की बात इसमें की गई है. नाउ ऑप्शंस क्या होंगे? Let's read from here once again. In a series of aggressive moves, the US one-time rotary of free trade has put in place. It has widened the coverage of protectionist shield aimed at stimulating domestic production and reducing the country's trade deficit. These moves, okay, these moves initiated by, लग रहा है मेरे को, because इन्होंने यहाँ पे देखो कहा है, these moves initiated by Donald Trump. Obviously यहाँ पे जो गैप में कुछ उन्होंने किया होगा उसी के बारे में यहाँ पे मूव्स बताए गए हैं. अब इसमें से ये सर्च करना होगा कि यहाँ पे ऐसा वर्क डिनोटिंग थिंग स्टेटमेंट कौन सा है. ट्रेजरी हैज डेजिग्नेटेड चाइना अ करेंसी मैनिपुलेटर. ऑब्वियसली नॉट. व्हाट इज क्लियर हाउएवर is that given importance to China the global manufacturing hub or China disrupt the global value? No. He tapped into a genuine grievance and railed against the element of a regime he was too beneficially brought up to power once. अब देखो ये स्टेटमेंट हो सकता था, लेकिन बट इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात समझ में आ रही है? उन्होंने ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही tapped into a genuine grievance and railed against the elements of regime. Regime मतलब to work like गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसे कहते हैं to work in a proper manner, methodology और system में. He was too beneficiary that brought him to power once. ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है these moves initiated by Donald Trump administration were on occasion टारगेटेड एट मल्टीपल कंट्रीज. यहां पे दूसरी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. दैट इट हैज वाइडन द कवरेज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट शील्ड. प्रोटेक्शन शील्ड अपनी वाइडन कर दी है कवरेज की, एम्ड एट स्टिमुलेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन. डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एंड रिड्यूसिंग द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट. कंट्री का मतलब यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात की गई है यहां पे. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या एक बार वीडियो पहले, सबसे पहले तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ गुड वन. अगेन 20 सेकेंड्स का टाइम आपको मिलता है. यूटिलाइज दिस एफिशिएंटली. सो मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं एक बार. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन वॉज द कल्मिनेशन की मीनिंग मैं आप बताऊंगा, of the final stage of the struggle of freedom and independence, which was won by the supreme sacrifices made by the millions of Indians. People across the length and breadth of the country made sacrifices in one way or other. Dash, every succeeding generation in India owes an eternal debt of gratitude to the country's forefathers for this sacred text. There is absolutely no doubt that we must keep the spirit of this text as well as the letter, while also protecting the constitutional values and its morality. ये sacred text की बात क्या कर रहा है पता है आपको? It's saying about constitution. Second in,
कल्मिनेशन की मीनिंग, कल्मिनेशन होता है इट्स द हाईएस्ट पॉइंट टू बी अटेन्ड और द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज अटेन्ड, दोनों हो सकता है, अचीव हो भी चुका हो सकता है एंड अचीव करना भी हो सकता है, हाईएस्ट पॉइंट. So the Constituent Assembly formation was the highest point to be attained of the final stage of the struggle of freedom and independence, which was won by the supreme sacrifices made by the millions of Indians. People across length and breadth of the country made sacrifices in one way or the other. अब नाउ स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं. पार्लियामेंट, द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर ऑल अंडर स्ट्रेस. ये कोई बात नहीं है बिकॉज यहाँ पे कर रहा सेक्रीफाइसेस की बात कर रहा है, अपनी सक्सीडिंग जनरेशन, ओज एंड टेनेंट डेप्थ की बात कर रहा है. ऑप्शन नंबर 8 डजंट मैच. ओके, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं. ऑन जनवरी 26, 1950 इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. लेट पुट इन द स्टेटमेंट. People across the length and breadth of the country has made sacrifices in one way or the other. On 26 January 1950, India got its constitution. Every succeeding generation in India owes a eternal debt of gratitude to the country. ये मैच कर सकता है, लेट अभी के लिए फिलहाल इसको एक टिक लगा के छोड़ देते हैं. Things are going wrong in the fast changing. Obviously not. They are indifferent to whether it is a government of people and by the people. कहीं बात हो रही है इसकी? Obviously. देखिए ऑप्शन खुद कहते हैं कि मैं एलिमिनेट हो रहा हूं, मैं एलिमिनेट हो रहा हूं. आपको बस देखना है, रेलेवेंस ही नहीं मैच कर रहा है इन तीनों ऑप्शन का. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ये मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. अगेन वही सेम टाइम. ये क्या हो गया पेन के साथ? शिट यार, व्हाट इज दिस? हाँ, एक 1 सेकंड. So, question number 13. I'm giving you 20 seconds of time again for this question. Do it on your own. खुद से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ये टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूं आपको मैं. So, let's go with the question. Today, liberty, equality and fraternity. प्रियम्बल के सारे वर्ड्स प्रियम्बल से लिए गए हैं. ओके. टुडे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर बिकमिंग सबसर्विएंट की मीनिंग क्या होती है? टू बी रेडी टू ओबे, किसी चीज के लिए भी ओबे करना, मतलब द पीपल दैट आर रेडी टू ओबे आर बिकमिंग रेडी टू ओबे टू न्यू आइडिया ऑफ सोवर्निटी. अल्ट्रा नेशनलिज्म हैज टेम्पर्ड मतलब हावी हो गया है, इट्स गॉन ओवर, टेम्पर्ड ओवर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटीज ऑफ द सिटीजन, स्पेशली ऑफ द डाउनट्रॉडन मतलब जो कि नीची नजरों से देखे जाते हैं, और एंड द माइनॉरिटीज. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बीइंग फॉरगॉटन. कॉन्स्टिट्यूशन भूला गया है, भूला गया है. ऑब्वियसली हिंदी गड़बड़ कर देती है अक्सर. ओके. डैश each organ is paying a lip service to this fundamental principle. Examples are writ large in front of us and happen every day. writ क्या होते हैं? सबसे स्पेशली पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है या सिविक्स 12 तक या कभी भी 10 तक पढ़ी होगी ना, 9 तक, 10 तक, 8 तक, वहाँ रिट का डिस्कशन होता है. 4 से 5 प्रकार के रिट्स होते हैं. रिट वो चीज होती है जो कि कोर्ट्स में डाली जाती है फॉर समथिंग दैट इज नॉट राइट. उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पॉलिटी से पढ़िएगा. आई एम नॉट हियर फॉर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन हाँ, रिट ऐसी चीज होती है जो कि डाली जाती है, कोर्ट में लोग डालते हैं एंड देन वी गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोर्ट.
रिट लार्ज इन फ्रंट ऑफ अस एंड हैपन एवरी डे, मतलब रोज ही रिट पढ़ती हैं। अब वी नीड टू जस्ट फिट इन द स्टेटमेंट इन दिस। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनलिज्म ने ट्रैम्पल कर दिया है, ठीक है, डाउन ट्रॉडन और माइनॉरिटीज को, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बिल्कुल भुला दिया गया है। द रूलिंग पार्टी, अगर हम स्टेटमेंट नंबर ए पढ़ेंगे तो द रूलिंग पार्टी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद चेस्ट थंपिंग ऑन ट्रिपल तलाक एंड अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब ये बताइए इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं आर्टिकल 370 की बात की गई है? It's talking about the basic things of the Constitution, that is liberty, equality, fraternity and things. So obviously Article 370 का कोई जिक्र नहीं है, तो obviously हटा दो इसको। The bifurcation of Jammu Kashmir is the most commendable। अब एक चीज जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, Article 370 is related to Jammu and Kashmir. So obviously if 370 is not in the context, Jammu and Kashmir would not be also. As a result, democratic principles are unable to check legislative, judicial and executive powers. Now, the spirit in constitutionalism is being forgotten. As a result, democratic principles are unable to check legislative, judicial and executive powers. I think this is the right statement. D वाला भी पढ़ के देख लेते हैं। The government's strategy on abrogation of Article 370 is obviously Article 370 के नाम से ही काट दो उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, जो मैंने 3 कराए हैं, 11, 12, 13, 14 दिए नहीं, 14 नहीं होगा, इनमें से हो सकता है प्रॉब्लम आए। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो अगेन पहले तो, एंड सेकेंडली यू कैन कॉमेंट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द डे। अच्छा है, फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेजेस, इसको आप इडियम्स भी बोलते हैं, मतलब इसको नहीं बोलते, फ्रेजेस अलग होते हैं, इडियम्स अलग होते हैं, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम है। सो द क्वेश्चन सेज 6 टाइम ग्रुप 1 विनर लॉरेंस, ये नाम है, टू डैश टू 7 फॉरलॉन्ग्स। फॉरलॉन्ग्स क्या होते हैं? फॉरलॉन्ग जैसे किलोमीटर डिस्टेंस होता है, मेजर करने की एक यूनिट है, वैसे फॉरलॉन्ग्स भी स्पोर्ट्स में डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। अब सबसे पहले तो अगर इन चीजों को जानना है तो उससे पहले इनके मीनिंग जानने पड़ेंगे, क्या मतलब होता है। देखो सबसे पहले चिप इन की बात करते हैं। इसका मीनिंग होता है हेल्प करना, टू हेल्प। गेट अप तो मतलब समझ ही रहे हो ना, स्टैंड अप फ्रॉम द बेड और गेट अप। ड्रॉप बैक का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉप बैक का मीनिंग होता है टू मूव बैक फ्रॉम अ पोजीशन। क्या होता है? लेट मी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टू मूव बैक फ्रॉम द पोजीशन, किसी भी पोजीशन से मूव बैक करना। और ब्रेक डाउन का क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, स्मॉलर पार्ट्स में खराब हो जाना। ब्रेक डाउन की 2 कैटेगरी, वैसे व्हीकल ब्रेक डाउन और पार्ट्स को ब्रेक डाउन, तो 2 हैं। एक तो तोड़ना छोटे पीसेस में, और दूसरा क्या है? गाड़ी खराब हो जाना एंड या व्हीकल्स खराब हो जाना इज ब्रेक डाउन ऑल्सो। सो 6 टाइम ग्रुप 1 विनर लॉरेंस टू ब्रेक डाउन टू 7 फॉरलॉन्ग्स। नो, ड्रॉप बैक, मूव बैक फ्रॉम द पोजीशन टू 7 फॉरलॉन्ग्स, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मेरे को तो ये। चिप इन टू हेल्प, हेल्प तो होगा नहीं, अब गेटअप भी नहीं होगा। ए में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेकडाउन चिप इन हो गया, मतलब हट गया, सो चिप आउट हो गया, हट गया। चिप आउट इज ऑल्सो रिमूविंग। मैं यहाँ पे एक और वर्ड अपने लिए डाले दे रहा हूँ, रिमूव। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ड्रॉप बैक। स्टेटमेंट में पुट करके देखते हैं। 6 टाइम ग्रुप 1 विनर लॉरेंस टू ड्रॉप बैक टू 7 फॉरलॉन्ग्स। ठीक है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। New lieutenant governor likely to have dash insurgency। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या होता है? इट इज अ रिबेलियस एक्ट, विद्रोही एक्ट, दैट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। ऐसा एक्ट
विबल एक्ट नॉट सक्सेसफुल, ठीक, ब्रिंग अप, ठीक, कॉल बैक, चेकआउट, डेल विद, ये सारे बहुत इजी हैं। कॉल बैक मतलब कॉल बैक करना, ब्रिंग अप मतलब लेके आना, सामने लेके आना, चेकआउट मतलब चेकआउट करना, डेल विद मतलब डीलिंग करना। द न्यू लेटरिंग गवर्नर लाइकली टू हैव, ऑब्वियसली एक ही चीज है, ब्रिंग अप सामने तो नहीं लाया होगा, इंसर्जेंसी को तो नहीं लाया होगा ना, उनका काम कंट्रोल करने का है। कॉल बैक, कॉल तो बैक कराया नहीं होगा किसी को। चेकआउट, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी को चेकआउट किया, हो सकता है, वी कैन से दैट। डेल्ट विद इंसर्जेंसी, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है कि द न्यू लेटरिंग गवर्नर लाइकली टू हैव डेल्ट विद द इंसर्जेंसी, चेकआउट तो करने से बेहतर है डेल्ट कर लें वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ a bonus question for you, क्या है ये बोनस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोनस क्वेश्चन, दिस यहां पे लिख रहा हूं बड़ा बड़ा। अब ये क्यों बोनस है? बिकॉज इट इज अ होमवर्क फॉर यू, ये एक क्वेश्चन ही होमवर्क है। या इस वर्ड की मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई थिंक 2 टाइम्स। या देखिए, जो भी वर्ड होते हैं मेजरली मैं आपको बताऊं, मेरे वोकैब में अराउंड 1.7 लाख प्लस वर्ड्स होते हैं, आप सारे नहीं पढ़ सकते हो, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है इसके बारे में। एंड आप सारे पढ़ने जाओगे तो आप जो भी पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। सो जरूरी बात ये है कि ये वोकैब का ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है और एग्जामिनेशन में भी कई बार आ चुका है एंड आएगा, कंफर्म है, वेरियस एग्जामिनेशन में आ चुका है। और आई थिंक आईपी मैथ में भी आया है प्रीवियस ईयर में, किसी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस ईयर में आया, लेकिन आया है शायद। सो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए, इसका आंसर कमेंट में डालिए। आप कहाँ डालेंगे आप इसका आंसर? कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इन दो जगह आप हमें आंसर सेंड कीजिए इसका। एंड इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा बिफोर स्टार्टिंग द मॉक सेशन 7। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वंस अगेन फॉर द बैठने के लिए यहाँ पे। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज भैया लाइक करिए वीडियो को। आप लोगों का ना कमेंट आता है ना आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है आप लोग बिजी हैं इस समय बिकॉज एग्जाम्स आर ऑन द वर्ज, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप देखने का कष्ट उठा रहे हैं, if you are going to the pain of seeing the video, then you must like the video also ना, लाइक करिए वीडियो को। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू माइट से, कुछ भी, डजंट मैटर, रिलेटेड टू, मतलब रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, पर्सनल लाइफ से मुझे नहीं आपकी इन्वॉल्व होना है ऑब्वियसली। सो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कॉल तो आप कर ही सकते हैं, आप नंबर अब पूरा आपके पास है, यू कैन ऑब्वियसली कॉल अस। एंड कोई सजेशन चाहिए हो या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, यू कैन जस्ट कॉल अस और कमेंट करिए, विल रिप्लाई एज सून एज वी कैन। दूसरी चीज, those students who are targeting IP MAT 24 next year or CUT 24, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 24, उनके लिए फ्रेश बैचेस शुरू हो जाएंगे यहीं पे वाईटी पे ही, कब से? मिड जून से। तो ये थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं CUT 24 के लिए और आईपी मैट 24 के लिए। मिड जून से फ्रेश बैचेस शुरू हो जाएंगे एंड तब तक आई होप सेटअप भी लग जाएगा, बोर्ड वगैरह ऑर्डर हो गया है, सब कुछ सेटअप रेडी है। एंड जो अभी फिलहाल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स फिलहाल हैं एनरोल्ड, मतलब वाईटी पे हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑडियो क्वालिटी की पहली बार, सबसे पहले तो आप ऑडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताइए कमेंट करके कि ऑडियो क्वालिटी पहले से इम्प्रूव है कि नहीं है। एंड आने वाले 10 दिन में ऑडियो क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और मॉक सेशंस उनके लिए चलते रहेंगे जब तक आपका लास्ट पेपर हो जाता है। आई थिंक लास्ट पेपर आपका इंदौर का पड़ेगा, रोहतक है, देन जिपमैट है, आई थिंक इंदौर आपका लास्ट पेपर पड़ेगा, या जो भी लास्ट पेपर आपका पड़ेगा।
वहां तक आपके मॉक सेशन चलेंगे, लगातार चलेंगे। गैप हो सकता है 1-2 दिन का, लेकिन आपको मोर देन सफिशिएंट, जितने आप लगा नहीं रहे होंगे मॉक टेस्ट सीरीज से, उससे ज्यादा मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा आपके। टारगेट मेरा 15 का है, लेकिन मुझे पता है मैं पढ़ाते पढ़ाते 20-25 आराम से करवा दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड दिस इज निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कीप लर्निंग, टिल देन कीप स्माइलिंग।